अभी भी मुझे काफी चीजों को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, और मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर पर्सन एज मतलब नॉर्मली भी हूँ. अरे माय नानी शी सेज कि तू स्क्रीन पे इतनी ज्यादा बड़ी दिखती है, रियल में तो इतनी छोटी दिखती है. आई रिसेंटली आई वेंट टू मसूरी एंड ऋषिकेश, सो उनको लगा कि इनको कहीं तो देखा है, एंड मेरे सामने दे आर गूगलिंग माय नेम. मुझे ऐसे कुछ नो नहीं है. ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं व्हिच आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग, बट ऐसे कोई चीज के लिए नो कभी नहीं रहा. मैंने इतने समय में ये रियलाइज किया है कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज आपको खुश नहीं कर सकती. इट्स जस्ट योर वर्क, इट्स योर फैमिली, it's the moment of happiness. Hello and welcome everybody. This is Sukarna. We have the very young, talented and beautiful Aanchal Sahu with us. Welcome to eTimes TV, Aanchal. How are you doing? Thank you. I'm doing great. Thank you for having me. How are you doing? I'm good. So how is work? How's the response on Pariniti? It's doing well. How is the response for you? It's good. I mean, I am satisfied कि चलो it's working good and people are liking it, and it's getting its name. मतलब अभी सबको पता है that Pariniti is a show and which faces are working on the show. So yeah, it feels good when your show is, just growing. So does that pressure like walks upon you कि show अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा? Does that happen to you? I think not individually. As a team, yes, of course. Because when we are on the set, I think हम creatives, directors, सारे लोग बैठ के हम बातें करते रहते हैं कि what to do now, अब क्या होने वाला है, क्या track आ रहा है, क्या नहीं. So it's a team work and individual pressure नहीं आया है touchwood कभी इस शो में. So it's like कि अगर कुछ हम कहीं पे टीआरपी में गिरे तो इट्स एवरीबडी who's पैनिक कि अभी क्या करना है, क्या नहीं, क्या करना है. सो इट्स लाइक अ टीम वर्क. So also discussion चालू रहता है क्या, like every week about the TRP, how is it doing, अभी क्या करते हैं? Yeah, not that, but हम obviously every week we see what is the TRP and what it is going, और आजू बाजू क्या चल रहा है, क्या नहीं. So yeah. So do you also improvise or give your inputs to it? No, I think वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, and I think they are doing just great. Actually, tell us from being a child actor to playing the leading lady on television, how do you sum up your journey so far? पता नहीं. I think बचपन में I was very nervous and I used to be very shy in front of camera. मैं नहीं ज़्यादा face कर पाती थी camera. I used to get nervous and all. But as I have grown, I have seen the shift in me कि अब I am comfortable in front of camera. Like you just say action, I'll be on my in my character. So this is the shift I have seen in me over the years because पहले मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, बहुत नर्वस हो जाती थी. एंड मैंने तो कई बार मम्मी को ये भी बोला था कि मम्मी नहीं जाते हैं ऑडिशन में, बिकॉज मुझे ना ऐसे डर लग रहा था. वहाँ पे इतने सारे लोग होते थे, कैमरा, एंड एवरीबडी इज जस्ट जजिंग यू, लुकिंग एट यू, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक सो नॉट इन दिस थिंग. तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे यू विल लर्न. एंड नाउ तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा. Touch wood. So do you remember like the first time you faced the camera for your first show, and then first time you faced the camera as the leading actress on television? Do you remember these two moments? I think till date मैं कभी भी कुछ चीजें स्टार्ट होती है तो आई गेट नर्वस, एंड मैं हमेशा एंग्शियस ही रहती हूँ कि कैसा सीन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या होगा, क्या नहीं. तो आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था इन 2011 फॉर द एडवर्टाइजमेंट, आई थिंक तभी भी मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, बट तभी मैं इतनी छोटी थी कि मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी. बट when I was doing क्यों थे दिल छोड़ा है, तभी भी I was the same nervous. I think वो एक चीज मुझे हेल्प भी करती है to be loyal towards my work, to work hard, and I am addicted to working hard. I love rehearsing my scene,
improvising it, doing some sort of changes in my lines only. So I love hard working. So I feel like that has been consistent, and मैं उसे हमेशा ऐसे ही रखना चाहती हूँ because it keeps me going. तो एक्टिंग में शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? बहुत छोटी थी तब मैं. I was 6 years old and मेरे मामू ने कोई तो एक साइट पे मेरे कोई पिक्चर्स अपलोड किए थे, मेरे बचपन के कुछ पिक्चर्स अपलोड किए थे. तो वहां से एक कास्टिंग डायरेक्टर पिंग्ड अस लाइक कि कम फॉर द ऑडिशन एंड समथिंग लाइक दैट. तो मेरे लिए मम्मा ने एक छोटी सी फ्रॉक लाई थी और मम्मी मुझे ऑडिशन के लिए लेके गई थी. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड बिगनर्स लक बोल सकते हैं. आई क्रैक्ड दैट ऑडिशन फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट. फिर वहां से as a child artist, I think मैंने बहुत on and off रखा. I used to be more focused on my academics also. Still I am focused on my academics. But वो टाइम पे मैं सिर्फ कभी कभी जाती थी या शूट करके, मतलब स्कूल जाके शूट पे जाती थी. So I used to never miss my school. तो वो एक बैलेंस हमेशा रहा है. और मैं इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी अपनी शूट लाइफ में. बट आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर आई फिनिश माई 10th grade, आई फील लाइक सब चीजें एकदम इतनी ऑनलाइन हो गई थी. You didn't have any pressure to go physically to the college and stuff like that. So I feel वो एक टाइम मिल गया था मुझे अपने आप में वर्क करने के लिए. So now what are you studying? I am studying like I'm in 13th grade and I'm just studying. I have that lectures in my phone. तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, I see that, I prepare my notes and अभी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं मई में. So yeah. तो स्क्रिप्ट एंड बुक्स साथ में रहता है इनवैलिडली? हाँ, बुक साथ में ही रहता है. एक टाइम पे मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और एग्जाम्स रहेंगे तो एक हाथ में बुक भी होती है. So Ashim, tell us, like you have been a child actress and now being leading actress on television. Has it been an easy transition for you? क्योंकि बहुत actresses child acting के बाद they choose a different path for themselves. Like were you determined कि मुझे टीवी में ही काम करना है? नहीं, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था. एंड मैं इस चीज के बारे में सोचती नहीं हूँ कि मुझे कहाँ काम करना है, क्या काम करना है. मुझे बस काम करना है. एंड आई एम अ पर्सन जिसको रोज काम पे जाना है बिकॉज दैट कीप्स मी ड्राइविंग, दैट कीप्स मी गोइंग. एंड बिल्कुल भी इजी नहीं है. ऑब्वियसली आज भी मैं बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत लगती है सब चीजें करने में. इट्स नॉट दैट इजी एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी फिल्मी एंड वेरी एक्टिंग और ये बैकग्राउंड. तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल ही था कि ये सब कैसे करूँ क्या नहीं. बट कुछ होते हैं ना जो आपके अंदर होती है बट आप खोज नहीं पाते हो. तो आई थिंक वो मेरी मम्मा थी. उनको पता था कि ये कुछ ना कुछ है इसके अंदर. कोई ड्रामा क्वीन छुपी हुई है. जब मैं मम्मी के आगे नखरे करती थी, मम्मी को ऐसा लगता था कि ये नखरे अभी स्क्रीन पे इसको करने चाहिए. तो वो मम्मी को पता था कि ये कुछ ना कुछ इसमें करेगी. बट मेरे तो कहीं पे भी नहीं था. लाइक मेरे वाइडेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था कि मैं ऐसे कुछ करूंगी. बट देन धीरे धीरे आई थिंक प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूस वर्किंग, आई थिंक वही एक चीज मुझे यहाँ तक लाई और टचवुड आगे भी लेके जाएगी. I have to ask you this, जब आप चाइल्ड लाइक बचपन से एक्टिंग शुरू करते हो एंड देन टेक अप लीडिंग रोल, बहुत टाइम लोग ऐसे भुला नहीं पाते हैं. दे आर स्टक इन ऑफ, दे हैव दिस इमेज ऑफ यू एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस एंड इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर ऑडियंस टू कनेक्ट with you as well. So like online पे भी roles and all ये सब होता है. Did you face that while you were transitioning from being a child actress to the leading role? Actually, people recognized me from क्यों थे. Let me like I used to work when I was a child. Like I used to not work that consistent कि मैं सबके नजरों में आ जाऊं. Just वो छोटी मोटी कभी ads, कभी print shoots, कभी कोई टेलीविजन में कोई छोटे बच्चों का रोल. सो आई यूज्ड टू नॉट बी एन आई कि अच्छा हाँ ये थी कोई बच्ची. पीपल न्यू मी आफ्टर क्यों थे दिल छोड़ा है. और तब उनको पता चला कि अच्छा ये पहले से काम करती थी. सो मैं लोगों के नजर में क्यों थे दिल छोड़ा से ही आई हूँ. एंड उसके बाद उनको पता चला अच्छा ये तो पहले भी थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया हुआ है यहाँ वहाँ.
So yeah, it wasn't that hard. But yeah, थोड़ा बहुत तो मुश्किलें आती रहती है. Some time में you have earned quite a lot of popularity and became famous. You are known right now. Did you expect this? No. Actually no. मैं तो इतना ज्यादा मुझे अभी भी मुझे काफी चीजों को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है और मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर पर्सन एज मतलब नॉर्मली भी हूँ. तो मुझे नहीं लगा था कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं. एंड आफ्टर थोड़ा बहुत मुझे अप्रेजल स्टार्ट हुआ तब मुझे पता चला कि या पीपल आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग. और वहां वो वैलिडेशन मिल गया कि नहीं, अब मैं और अच्छा कर सकती हूँ, अब मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकती हूँ. कैसे मैं क्या करूँ, स्टिल आई एम इम्प्रूविंग, स्टिल आई एम लर्निंग. मैं जहां से भी मुझे कुछ भी सीखने को मिला आई जस्ट लर्न. सो या आई फील लाइक मैं वो बस हार्ड वर्क करते जा रही हूँ एंड पीपल आर लविंग इट. वो तो So when did you feel कि हाँ that moment कि लोग मुझे जानते हैं, I'm getting known, I'm getting famous, ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है? आई थिंक सोशल मीडिया में तो कुछ चीजें अलग होती है बट इट्स द रियल लाइफ. सो जब आप ऐसे बाहर जाते हो आफ्टर बैरिस्टर आई थिंक पीपल न्यू मी थोड़ा सा ज्यादा because there was a very famous show and obviously मेरी entry में भी it was very much hyped कि who will be the बड़ी बॉन्दिता and all. So yeah, people knew me after Barrister and yeah, तब मुझे पता चला अच्छा लोग अभी पहचान रहे हैं. कोई real life incident हुआ था like which is memorable for you? हाँ मतलब मैं जब भी कोई सरस्वती पूजा में जाती थी या कहीं पे भी जाती थी तो वहां पे तो सारे लोग they used to watch Barrister and all. तो बहुत ज्यादा ये कहते थे कि यार we love your show, this that. Even परिणीति मतलब मैं अभी टचवुड मतलब अभी genuinely people know about this show and they know कि अच्छा ये परिणीत है, this is that and they take it personally कि आपके साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है. So yeah, it just feels great. So in Barrister Babu, it was very like retro character, like yeah. And real life में you know often people get confused कि अच्छा real life में ये ऐसी है and all. Have you ever faced any such comment in real life? Yes, my nani she says कि तू स्क्रीन पे इतनी ज्यादा बड़ी दिखती है, रियल में तो इतनी छोटी दिखती है. मैंने कहा हाँ नानी जी. उनको लगता ही नहीं है कि वो मैं हूँ. कहती ये कौन है? मैंने कहा नहीं मैं ही हूँ वो, क्योंकि मैं रियल लाइफ में आई लुक लाइक 18-year-old बट स्क्रीन पे यू लुक 20-21. तो my नानी gets confused. Any fan moment? Yeah, मतलब लोगों ने I recently I went to Mussoorie and Rishikesh. So उनको लगा कि इनको कहीं तो देखा है and मेरे सामने they are googling my name and they are just like cross checking कि ये वही है ना, लेकिन इसमें इतनी अलग क्यों लग रही है, इसमें इतनी ये क्यों लग रही है, and they are asking me is that you? Like yeah. So Asu, tell us, you have done shows and I was reading up about you. You were also seen in Mardani 2. How was that experience? How did that film happen to you? I think it was when I was in 7th or 8th grade. I was 13, 12 or 13 या 14. So ऐसे ही मुझे एक ऑडिशन के लिए I went to YRF and वहाँ पे एक प्रॉपर ऑडिशन हुआ and then they थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला I am locked for the role and it was a very small but it was a nice role and वहाँ पे काम करके it was really good. We went to Jaipur and we worked for that and yeah, it was great. Did you also get to work with Rani Mukherjee at that time? No, unfortunately not. But yeah. And how was the film experience for you? It was great. It was something very different and again I learned a lot about that genre also, that how things work and everything like that. तो आगे मूवीज का कोई इरादा है?
जो काम आए, गणपति बप्पा मोरया. So, Ashi, tell us a bit about your childhood, where are you from and how did this acting bug hit you? How did acting happen to you? I am born and brought up in Mumbai, and I am a hardcore Mumbaikar only. My mama is also born and brought up in Mumbai, but my hometown is Odisha. So, and also like in our family, acting and going into showbiz is a really big thing. And there were always misconceptions कि यहाँ पे थोड़ा मत भेजो, ये दुनिया देखने में बहुत अच्छी है बट ये ऐसा अच्छा नहीं होता, ये वो. बट ऑब्वियसली दैट इज ऑल अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता है. So जब I was also like as a child, that is I was trying here and there were things कि क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. But yeah, now the same people tell me, wow, she's doing great, I want my child to be like her also. Yeah, so this is the things I have seen, and I feel like थोड़ा मुश्किल था to go here and work. But मेरी मम्मी हमेशा मेरी एक ढाल थी कि वो she used to answer everyone कि देखते हैं, करने दो उसको, करेगी, ये वो. So yeah, and I feel like my mummy, my नानू, मेरी नानू का बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक्टर बनूं, and my elder sister, he wanted her to become doctor. So she's an MBBS intern today, and hopefully his dreams will be fulfilled. So acting actually start कैसे हुआ था for you? I think मुझे बचपन से सबको ऐसा लगा, because I used to be थोड़ा सा नखरे वाली and थोड़ा सा ड्रामा क्वीन, and मैं लोगों के सामने शर्मा जाती थी, but then मैं उसमें घर में बहुत ज्यादा ऐसे बात करती थी और बहुत ड्रामा थी. तो मेरी मामा और मेरी मम्मी दोनों को ऐसा लगा कि भाई इसको कुछ ना कुछ तो कराओ, इसका टैलेंट अच्छी चीज में यूज करो. तो मेरे मामा ने वही एक पिक्चर डाली थी, एंड देन दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड. एंड माय मम्मा ऑलवेज वांटेड कि मैं अपनी दोनों लड़कियों को इतना ज्यादा फाइनेंशियली एंड इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाऊं कि पीपल विल बी लाइक कि हाँ, ये है साहू की लड़कियां. सो या, दैट वाज हर मोटो, एंड आई फील लाइक वो उस राह पे हम चल रहे हैं टच वुड. So what about doing work on other platforms? There are a lot of OTT platforms as well. Do you have any plans to explore those platforms? Why not? I feel like कलाकारी acting is something कि आपको कहीं रुकावट नहीं है, आप कहीं पे भी I say it very often, कोई भी मीडियम मैटर नहीं करता, आपको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए परफॉर्म करने के लिए. मैं अपने सामने कैमरा ऑन कर दूंगी और मैं 1 मिनट का 2 मिनट का सीन एक कैमरा पे भी परफॉर्म कर सकती हूँ, वो भी एक एक्टिंग है. आई जस्ट नीडेड प्लेटफॉर्म, एंड आई फील लाइक कि मुझे अभी मेरे पास एक मीडियम है परफॉर्म करने के लिए, और मुझे कोई भी मीडियम मिलेगा, आई विल मेक श्योर कि मैं उतना हार्डवर्क, उतना डेडिकेशन डालूं और वो मीडियम में अच्छा परफॉर्म कर सकूं. बीट एनीथिंग, बीट टीवी, बीट एड्स, बीट OTT, beat short film, beat movies, anywhere. I feel like it's just your acting and your hard work. That's it. And I feel like I would love to work in all of those mediums. So also as an actress, as an actor, do you have any personal limitations of what you don't want to portray on screen? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि काम होता है, काम को कभी मना नहीं करना चाहिए, और जो कुछ भी आपके पास आता है वो भगवान जी की मर्जी होती है, और उनके खिलाफ कभी मत जाओ. एंड इट हैज हैपेंड टू मी, लाइक बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ करना चाहती थी और वो मुझे नहीं मिला, और मुझे बाद में कुछ और मिल गया, बट फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ वो चीज मुझे क्यों नहीं मिली, एंड इट वॉज फॉर द गुड, इट वॉज फॉर माई बेटरमेंट, इट वॉज फॉर माई गुड. सो मैं कभी भी उनके विल के अगेंस्ट नहीं जाती हूँ. व्हाटएवर कम्स माय वे, आई ट्राई टू डू इट विद utmost डेडिकेशन एंड utmost हार्ड वर्क, एंड आई फील लाइक वही होना चाहिए. मैं इतना नहीं सोचती हूँ फ्यूचर के बारे में, बिकॉज दैट्स इट्स नॉट इन योर हैंड. आप नहीं पूरा प्लान करके रख सकते, बिकॉज यू नेवर नो कल क्या हो जाए, कौन सी चीज आपके लिए वर्क कर जाए, यू हैव नो क्लू. तो आई फील लाइक प्लानिंग कभी कभी अगर आपने प्रॉपर प्लान करके रखा, अगर वो आपके अकॉर्डिंग ना जाए तो और ज्यादा हर्ट होता है. So it's like कि live in the moment, जो मिल रहा है just do it with like utmost loyalty, things will fall in place.
Achal, has it been easy for you कि आप बहुत बचपन से you have been in the industry and you have had contact to know more about what's happening where and had that support from your parents as well? Or has there been any moments of distress while trying to get any role or work? नो ऑफ कोर्स नॉट. आई फील लाइक कि मम्मी ने हम एक ऑडिशन पे गए, फिर वहां पे किसी ने कांटेक्ट दिया कि यहाँ पे भी ऑडिशन चल रहा है. वी यूज्ड टू गो देयर एंड इन अ डे वी यूज्ड टू गो गिव लाइक 4 to 5 ऑडिशंस, ताकि मुझे नेक्स्ट डे प्रॉपर मुझे टाइम मिल सके पढ़ाई के लिए भी. सो इट वाज लाइक कि करते 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 वो कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए एंड चीजें आती गई, बिकॉज इट वाज नॉट इजी. आई मीन हमें पता ही नहीं था कि कैसे कहाँ जाए क्या करे. मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, बट उन्होंने सबसे, हम जाते थे तो कॉन्टैक्ट्स लिए, फिर वो बढ़ते गए. जस्ट वेंट लाइक दिस एंड तभी चीजें समझ आई कि अच्छा अभी ऐसा होता है वैसा होता है. टिल नाउ, आई मीन टिल क्यों थे ऑल्सो, हमारे पास इतने कोई कॉन्टैक्ट्स थे नहीं. इट वॉज वेरी रैंडम कि मुझे ऐसे क्लिप आ गया एंड आई डिड एंड आई गॉट लॉक्ड फॉर द शो. बट या तब भी हम हसल ही कर रहे थे कि कैसे जाए, how do we get into a show and everything like that. So yeah, it wasn't easy. Talking about scenes, doing scenes as an actor, what if a romantic scene is offered to you? Will you do it, romantic or an intimate scene? I haven't thought about it. I mean, अभी तक जो भी मैं करती आई हूँ, आई फील लाइक कि इट्स वेरी प्रोफेशनल. You need to take it very professionally, and even my mama and my father, they are all aware. My mama like is there with me on the sets, and they know everything, how it is shot, and it is very professional. And I feel like it is your work and you should do it. Also, as an actress, like we see on television, young actresses are portraying the role of mother and grandmother. Leap hota rehta hai and you progress. Do you have any such limitations? I won't portray the role of a mother or older age. No, I don't feel like. I mean, it's just between the action and cut, and after that you are in your own this thing. And I feel like show का भी एक लाइफ होता है, वो भी बढ़ता जाता है आगे, एंड इट्स द कैरेक्टर दैट इज ग्रोइंग एंड विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द शो. They'll do it and they'll obviously try to save the show, and which is necessity, it is going to be there and you have to do it. And I feel like मुझे ऐसे कुछ no नहीं है. Obviously कुछ चीजें हैं which I'm not comfortable doing, but ऐसे कोई चीज के लिए no कभी नहीं रहा. Yeah. So आगे, like, do you wish to pursue like acting or like academic wise you want to study something? Like you want to pursue something? Yeah, I am. मुझे जो भी मेरे academics में करना था, I am doing that. And यहाँ पे I feel like this is the whole. This is also a job, and I feel like yeah, it is more of it. It requires a lot of attention and dedication here too. You cannot sail in two boats. I feel like आपको कहीं पे ज्यादा समय देना पड़ता है. And I feel कि अभी it is growing, तो मुझे इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. But obviously I have to manage my studies as well. And yeah, which I am doing, I feel like. Reality shows का क्या ख्याल है? Like, do we see you doing reality shows like an adventure base or a dance base, or like if Big Boss is offered? I would not mind. I mean, I've never thought about it, but obviously we can think of it later. But you are okay with it? Yeah, I feel it. Yeah. Also, like, you have been acting for such a long period of time. What are your dreams and aspirations, like personal dreams and aspirations, which you wish to fulfill or you have fulfilled so far? मैंने इतने समय में ये रियलाइज किया है कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज आपको खुश नहीं कर सकती. इट्स जस्ट योर वर्क, इट्स योर फैमिली, इट्स द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस.
आई फील लाइक जब आप खुश रहते हो ना, तब उससे बड़ा और कोई सुकून नहीं है. तो मेरा बस यही है कि मेरे परिवार में सब हेल्दी रहे, सब खुश रहे, किसी को किसी से कोई ये ना हो कि ये कर रहा है वो कर रहा है, सब अपना काम करे और सब बस खुश रहे. बस यही मेरा सपना है. एंड आई फील लाइक मैं उसके टुवर्ड्स वर्क करूंगी तो ये भी चीजें पूरी हो जाएंगी. Finances, who handles? Like, do you give it all to your parents? And how does it work? Yeah, obviously. It's all handled by my parents. And I feel like मैं 50 साल की भी हो जाऊंगी ना, तभी भी वही हैंडल करूंगी. And वही अच्छा लगेगा. I have to ask you this: social media is playing a big game right now. You know, like followers, increasing followers, and getting roles and all. Does social media impact you? You have to be consistent on it and be present on social media. No, I don't feel like ऐसा है. जब आप कहीं पे काम कर रहे हो, ऑलरेडी आप दिख रहे हो लोगों को, एंड हाँ थोड़ा बहुत वर्क रिलेटेड यू हैव टू पुट एंड कि यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, बट इट शुडंट बी योर एवरीथिंग. एंड आई फील लाइक कि कीप इट रॉ एंड रियल, क्योंकि सम पीपल थिंक इट्स एवरीथिंग इज रियल, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. रियल में कुछ और ही चल रहा होता है. सो या इन सबको जितना आप नॉर्मल रखो उतना अच्छा है. एंड इट्स नॉट एवरीथिंग. आई फील लाइक आई डोंट नो, मेरे पास इसके ऊपर ज्यादा थॉट्स नहीं है, लेकिन इट डजंट अफेक्ट मी दैट मच. मैं तो बहुत टाइम से ऐसे इनएक्टिव भी रह जाती हूँ कितने समय तक, एंड देन आई गेट टू यू नो फ्रॉम द पीआर्स एंड एवरीथिंग कि कुछ तो करो, प्रमोट योर शो एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो या, Thank you so much, Aanchal. It was great talking to you. Thank you so much for giving us your time. thank you so much for having me. Thank you. Thank you. It was great having you. Thank you so much. Bye. Take care.